Myself Bhavna Gupta and my roll number is 245021 and my today's topic is Jacobians. What is the definition of Jacobians? If u1, u2, so on u1 are the function of the of n variables like x1, x2, so on x1, then the determinant delta u1 upon delta x1, delta u1 upon del x2, del u1 upon del xn. Again we differentiate u2 with respect to x1, x2 and xn. In third step un, so we differentiate un with respect to x1, x2 and xn. This is the determinant of Jacobian function. As for the example, if we take u is equal to sin x and v is equal to cos y, so u are the function of the x and the v are the function of the y, and the Jacobian function is written in the form of del uv upon del xv is equal to Jacobian. It can be also written in the form of the this. After that, we know that in upper I told that we have to find Jacobian determinant. So then we find determinant of Jacobian function, and dv upon dx, determinant of dv with respect to dy. Like this, we also find the determinant of three variables, means Jacobian of three variables with respect to x, y, z. सो इसमें मैं बताया कि मैं आगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस फॉर्म में डिटरमिनेंट में लिखूंगी. तो फर्स्टली हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x का. फर्स्टली हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट लाइन में सिंपल वे में. del on del x, differentiation of u with respect to y, differentiation of v with respect to z. Now differentiation of v with respect to x, differentiation of v with respect to y, differentiation of v with respect to z. My third variable is w, differentiation of w with respect to f, differentiation of w with respect to y, differentiation of w with respect to z. Now I will tell you about the example of Jacobian function. If x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, so what is differentiation of xy with respect to differentiation of r and theta? Previously I told about how to write the differentiation of xy with respect to d theta. Firstly, differentiation of x with respect to r, differentiation of x with respect to theta. In next line, differentiation of y with respect to r, differentiation of x with respect to theta. So differentiation of x with respect to r.
आर कॉस थीटा. सो आर के रिस्पेक्ट में आर इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा विल कांस्टेंट. Differentiation of x with respect to theta. So we differentiate cos theta, r will remain constant, and differentiation of cos theta is minus sin theta. Now we find the differentiation of y with respect to r. So sin theta and differentiation of y with respect to theta, r will constant, and sin theta is equal to cos theta. So we put these value in this equation. So we get cos theta minus r sin theta r cos theta is equal to r cos square theta. माइनस होता है बीच में तो माइनस माइनस प्लस प्लस r sin square theta. R will constant and cos square theta plus sin square theta will remain in bracket. As we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1, so the answer of this question will R. Now I will tell you about the properties. The first properties is Jacobian of a function. Jacobian of a function क्या होता है कि if u1, u2 show on un are function of y1, y2, yn and y1, y2 so on yn are themselves function of the x1, x2 and so on xn. मतलब u1, u2, un ये फंक्शन है y1, y2 एंड yn के, और जो y1, y2 एंड yn है ये भी x1, x2 एंड xn का फंक्शन है. तो हम इसको जैकोबियन फॉर्म में लिख सकते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ u1, u2 सो ऑन un अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x1, x2 सो ऑन xn. तो फर्स्टली वी हैव टू डिफरेंशिएट u1, u2 and un with respect to y, y1, y2 and yn. Then y1, y2 and yn, we have to differentiate y1, y2, yn with respect to x1, x2 and xn. In simple form, this theorem is differentiation of u with respect to x is equal to differentiation of u with respect to y and differentiation of y with respect to f. Now I will tell you one example of this property. If in question given that if u is equal to x square minus y square and v is equal to 2xy and x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So according to Jacobian, we know that this equation. So we can write differentiation of uv up with respect to differentiation of r theta, differentiation of uv with respect to xy, फिर xy को डिफ्रेंशिएट करेंगे r थीटा से, r थीटा. तो हम ये फर्स्टली u v को निकाल लेते हैं एक्स वाई के रिस्पेक्ट में. I have already told you that differentiation of u with respect to x
differentiation of u with respect to y. Again, differentiation of v with respect to x and differentiation of v with respect to y. Differentiation of u means this term with respect to x. So the value will x square will 2x and y square will constant. Differentiation of u with respect to y minus 2y. Differentiation of v with respect to x, this, to x will 1 and 2y, answer. And differentiation of v with respect to y, so y will differentiation of y is 1, so remaining will 2x. Differentiation of this is 2x into 2x, 4x square plus 2y minus 2y minus minus plus 4y square. Now we have to find differentiation of this term. Differentiation of x and y with respect to r and theta. Differentiation of x with respect to r, differentiation of x with respect to theta. Differentiation of y with respect to r and differentiation of y with respect to theta. तो x को अगर r के, ये x वाला टर्म है, r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी cos थीटा, और अगर x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस r साइन थीटा. अब हम y को, जो ये y इज इक्वल टू r साइन थीटा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तब हमारा आंसर आएगा साइन थीटा. और अगर हम y को d थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तब हमारा आएगा r cos थीटा. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके, तो हमारा आंसर आ जाएगा r. मैं एक बार ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. अगर हमारा u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन हो और v इज इक्वल टू 2xy हो और x इज इक्वल टू r cos थीटा हो, y इज इक्वल टू r sin थीटा हो, ये हमारी वैल्यूज दी गई हो किसी भी टाइप की, तो हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन we know that differentiation of u with respect to x is equal to differentiation of u with respect to y and differentiation of y with respect to x. तो फर्स्टली हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे u और v का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स वाई का r और थीटा के रिस्पेक्ट में, तब हमारा ये डिफ्रेंशिएशन आएगा. हमारा फर्स्ट वाले टर्म में आया था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और सेकेंड वाले में आया था r. इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बाहर हो जाएगा 4r और अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर होगा. अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो जो होती है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें इस थ्योरम में हमारा क्या बताया जाता है कि अगर u1 u2 सो ऑन u1 एक फंक्शन है जो कि n से रिलेट कर रहा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ x1 x2 xn are connected by n independent relations. There are so many relations according to this. हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि अगर हमारा एक फंक्शन है u1 u2 एंड u3
अगर ये 0 के इक्वल है, मतलब हमारे जितने भी फंक्शन होंगे u1 u2, ये x1 x2 के रिस्पेक्ट में वो 0 होंगे। वो 0 होंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका कौन सा फंक्शन है जो 0 होगा। तो हम एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमारा u गिवन है x इज इक्वल टू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा v कुछ गिवन है लाइक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो हमें ये प्रूफ कराना है, we have to show that the uv are functionally related। और जो हमारी ये है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको हम फंक्शनल रिलेशन थ्योरम भी बोलते हैं। तो हमारे uv गिवन है, तो सबसे पहले हमें पता है कि सबका डिफरेंशिएशन निकालना होता है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में u का और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में v का। तो फर्स्टली हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं du का x के रिस्पेक्ट में। तो इसका x रूट वन माइनस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो वन माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2xy अपॉन 2 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे u का y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस 2xy हो जाएगा, minus 2xy upon 2 root 1 minus y square. As we know that differentiation of root x is equal to 1 upon 2 root x. The remaining term 1 minus x square. अब हमारा सेकेंड टर्म v की वैल्यू है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो हम डिफरेंशिएशन v का निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। साइन इनवर्स x है तो 1 अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हमें पता है डिफरेंशिएशन होता है, और v का y के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स y है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होता है। सबका डिफरेंशिएशन फाइंड हो गया है। हमें जैकोबियन का रूल पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ uv होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू f, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, differentiation of v with respect to x and differentiation of v with respect to y। इनकी वैल्यूज हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x की वैल्यू आई थी रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to y की वैल्यू आई थी माइनस 2xy अपॉन 2 रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और v विथ रिस्पेक्ट टू x आई थी वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम करते हैं, तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके हो जाएगा 1 अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 2 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। 2 विल कैंसिल, मिडिल में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारा ये वाला टर्म बचेगा माइनस 2xy अपॉन 2 रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। 2 विल कैंसिल प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तब हमारा सिर्फ 1 बचेगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर।
फिर बीच में प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एक्स वाई बचेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन ये कैंसिल हो जाएगा तो +1 बचेगा। हमारा मिडिल में माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारा वैल्यू आया 0। अगर किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तब हमारा फंक्शनल रिलेशन होता है। थैंक यू।